ପିଲାମାନେ ଆଜି ଗଣିତର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଙ୍କନ 1 ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅଙ୍କନ 2। ପିଲାମାନେ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଗୋଟିଏ କୋଣ ଓ ଦୁଇ ବାହୁର ସମଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ସେହି ବାହୁ ସଂଲଗ୍ନ କୋଣ ଆଉ ଦୁଇ ବାହୁର ଅନ୍ତର ଦତ୍ତ ଅଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା। ତେଣୁ ଏଇଟା କିପରି କରିବା, ଆଗେ ରଫ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ବୁଝିବା। ସେ ଅଙ୍କନ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ବାହୁର ଅନ୍ତର ଦିଆଯାଉଛି ଆମେ କିପରି କରିବାକୁ ବା କିପରି କରିବା। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ରଫ୍ରେ ସେଟା ବୁଝେଇବି କେମିତି କରିବା। ଦେଖ ମନେକର ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ABC ତ୍ରିଭୁଜ। ABC ତ୍ରିଭୁଜ ଏଠାରେ AB ବା AC ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ AB। AC ବାହୁଟି AB ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛି ଆଉ B କୋଣଟା ଦତ୍ତ ଅଛି। B କୋଣ ଦତ୍ତ ଅଛି ମନେକର θ ଡିଗ୍ରୀ। B କୋଣ ଦତ୍ତ ଅଛି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଅଛି AC ମାଇନସ୍ AB এইটা ମଧ୍ୟ ଦତ୍ତ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁଟା ACର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ବା ACଟାକୁ ଆମେ କହିବା ସ୍ମଲ୍ b, ABଟାକୁ କହିବା ସ୍ମଲ୍ c। B ମାଇନସ୍ c ଦତ୍ତ ଅଛି। କିପରି କରିବା ଯେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବଡ଼ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା। B କୋଣ କଲେ BC ନେଇଗଲେ ମନେକର A ସେଣ୍ଟିମିଟର, BC ନେଇଗଲେ A ସେଣ୍ଟିମିଟର, B କୋଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ ବା ଯେତିକି ଦେଇଥିବ ଆମେ କଲେ। ତାପରେ ଏଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ଅନ୍ତର ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଏଇଟାକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଦେବା। ମନେକର D ହେଲା। এই ଯେଉଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ତା ଦ୍ୱାରା এই ଯେଉଁ ADC ଏକ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହୋଇଗଲା। ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମିର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ଲମ୍ବ ସେଟା A ବାଟେ ଦେଇକି ଯିବ, A ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବ। ଏଟା ଭୂମି ହେଉଛି CD। ତେଣୁ ଆମେ CDକୁ ଆମେ ତାର ଲମ୍ବ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କଲେ ତାହା A ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯିବ। ଆମେ A ବିନ୍ଦୁ ପାଇଗଲେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ। ତାପରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜଟି ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ଏଇଠି ଦେଖ ସ୍ଲାଇଡ଼କୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଅଙ୍କନ 2, କୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ସେହି ବାହୁ ସଂଲଗ୍ନ ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନ୍ତର ଦତ୍ତ ଅଛି। ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା। କେମିତି କରିବା ମୁଁ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଆମର ଏଠି ଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ସେଠି AC ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ AB। ABଟା ଟିକେ ସାନ ଅଛି ଆଉ B କୋଣ ଦତ୍ତ ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେ ABଟାକୁ ଟିକେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ତଳ ବା ନିମ୍ନ ଆଡ଼କୁ, ଯେପରି AC ସହିତ AD ସମାନ ହେବ। ସମାନ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ADC ଦେଖ ଗୋଟିଏ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି। ADC ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମି ହେଉଛି DC। ଆମେ ଲମ୍ବ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବା, ତାହା ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ A ମଧ୍ୟ ଦେଇଯିବ। A ବିନ୍ଦୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ ACକୁ ଯୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଏମିତି କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି ଦେଖ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ABଟା ବଡ଼ ଅଛି, ACଟା ସାନ ଅଛି। AB ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ AC। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ABରୁ BD ଅନ୍ତର ଯେତିକି ଅଛି, ଅନ୍ତର ଅଛି ବା ଯେତିକି ABଟା ବଡ଼ ଅଛି ସେତିକି ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, ଅନ୍ତର କରିବା BD। କରିସାରିଲା ପରେ D ବିନ୍ଦୁ ପାଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ACଟା AD ସହିତ ସମାନ ହୋଇଗଲା। ADC ଏକ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। DC ତାର ଭୂମି। ଆମେ DCର ଲମ୍ବ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବା, ତାହା ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ A ମଧ୍ୟ ଦେଇଯିବ। ତାପରେ ACକୁ ଯୋଗ କରିବା। এইটা ହେଉଛି ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଚିତ୍ର। ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିକି ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏବେ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା ଅନୁଶୀଳନୀ 6Bର ପ୍ରଥମ 1 ନମ୍ବର ଫାଷ୍ଟ ବିଟ୍। ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ଦତ୍ତ ଅଛି ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କର ଯାହାର ସ୍ମଲ୍ A 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ C କୋଣ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ସ୍ମଲ୍ B ମାଇନସ୍ C, ଯେଉଁଟା ସ୍ମଲ୍ B ଅନ୍ତର ସ୍ମଲ୍ C ସେଟା ହେଉଛି 1.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିକି B ଓ Cର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ କରିକି ଦେଖିବା କେତେ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏ ଅଙ୍କନଟା ମୁଁ ଏଇ ବୋର୍ଡ଼ରେ କରିବି, ଏ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗୀନ ପେପରରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ। ସ୍କେଚ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରିବି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି BC ନେଇଛି 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନେଇଯାଇଛି। ଏଠି C ବିନ୍ଦୁରେ ମୁଁ 45 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବି। ଯେ 45 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ କିପରି ଅଙ୍କନ କରିବି, ଏଠି 90 ଡିଗ୍ରୀ କରିବି। 90 ଡିଗ୍ରୀ କରିସାରିଲା, ପ୍ରଥମେ 90 ଡିଗ୍ରୀ କରିବି। ଦେଖ
90 डिग्री कर सारा पर ताकू समान दिखण करके 45 डिग्री कोण अंकन करी। बर्तमान यहाँ 90 डिग्री कोण अंकन कली तार अधा नवा 45 डिग्री तार अधा अधारू टिके बेसिक नहीं आम चाप काटिबा। तेणु आम जॉइन करवा यहाँ हूँ 45 डिग्री। देख पिला माने 45 डिग्री कोण नहीं गले नहीं सारा पर आम जो अंतर अच्छी केते 1.5 ता ऊपर को टिके नहीं जावा अंतर यहाँ डी बिंदु पाइबा 1.5 बहुत छोट हम आम 1.5 ये नहीं जावा यारी ऊपर हो तेणु आम से बी सहित जोग करवा ये बिंदुटा को देख यहाँ पाइले डी बिंदु। बर्तमान बी डी एक समद्विबाहु त्रिभुजर भूमि से बी डी को समद्विखंड करवा। देख बी डी को समद्विखंड करवा बी मु अधार अधिक नहीं चाप काटिली डी रे मध्य चाप काटिली तापर मु लंब समद्विखंड को जोटा सेटा अंकन करी। वर्तमान ये जो सी डी को वर्धित कलापर जो बिंदुटी पाई सेटा को मु ए बिंदु देली। वर्तमान ए बी को जोग करी। बर्तमान मु त्रिभुजटी पाईगली। देख मु बुझे दूची किपरि आम अंकन करवा। प्रथमे बीसी नहीं जावा 6 सेंटीमीटर जोटा को स्मॉल ए देची बीसी 6 सेंटीमीटर नहीं जावा। तापरे सी बिंदु रे 45 डिग्री कोण देची सी बिंदु रे 45 डिग्री कोण अंकन करके बढ़े दबा। तापर जो अंतर देची जे स्मॉल बी माइनस स्मॉल बी जोटा होची ए बी स्मॉल सी जोटा बी सी ए बी माइनस बी सी तार अंतर देची। आमर स्मॉल बीटा हूँ भूल लिखिली स्मॉल बीटा हूँ एस सी जोटा एस सीटा बड़ होची आउ ए बी यही दुटार अंतर आम नहीं 1.5 मुझे 1.5 नहीं गली ये टाण नहीं गली 1.5 तापर डी बी को जोग कली जोग कर सारा पर डी बी समद्विखंडक लंब मु अंकन कली तापर ए बिंदु पाइली। अतएव ए बी सी एक आवश्यक त्रिभुज। पिला माने आशा करुँचा बुझीपार जमती मु अंकन कली तबे सेमती अंकन कर। आम परवर्ती प्रश्न को जीवा जे परवर्ती प्रश्न देख कौन अच्छी त्रिभुज एबीसी अंकन कर जार स्मॉल ए 6.1 सेंटीमीटर सी कोण 75 डिग्री और सी माइनस बी 1.4 सेंटीमीटर एवं सी और बी दैर्घ्य माप कर देख। तेणु यहाँ को आम अंकन करवा। देख जे प्रथमे आम कौन करवा मु गोटे रंगीन पेपर नहीं कि अंकन करुच्ची जोटा कि तुम परिष्कार भाव में देखिपर जे एठी तारी भाया टिके किंतु एठी आमर देइची सी माइनस बी सी अर्थ आमर ए बी स्मॉल सी आ बी अर्थ आमर ए सी। तेणु एठी ए बी बड़ ए सी सान टिके अच्छी केमती अंकन करवा। देख ये रफ चित्र टे लक्ष्य कर जे रफ चित्र रे जे एसी टा टिके बड़ अच्छी ए बी टिके सान अच्छी सी बिंदु दे सी कोण दे 75 डिग्री। ये गोटे टेक्निक मुझे तुमको कहीदे मन रख जो कोण दे मनकर सी कोण दे सी सहित जो संलग्न बाहुटा को सहीटा को तुम बढ़ेब बा कमे पार जो कोण देना से बढ़ेब ना आम तुम कह आम ए बीटा को बढ़े पारू किंतु ए बी तो कोण देनी केमती बढ़ेब जो बिंदु कोण दे से बाहु संलग्न बा से ता सहित संलग्न बाहु को तुम बढ़ेब बा कमे कि तुम ता अंतरटा को देख। देख मुझे केमती करुँची ये एबीसी त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एसीटा सान एबीटा बड़
मुझे 75 डिग्री देवी नहीं कि बाहुटा को बढ़े देली डी पर्यंत ये जो सी डी ये हूँ 1.4 तापर ये जोग कली सी डी ये 75 डिग्री नहीं बढ़े देली 1.4 तापर यहाँ 6.1 नहीं बर्तमान बी डी पाई सारापर समद्विखंड करवा आम शीर्ष बिंदु ए पाइबा। ये देख मुझे करुच्ची प्रथम 6.1 अंकन करी 6.1 नहीं सारापर तुम्हें 6.1 देख 6.1 यहाँ हूँ मु बीसी बाहु अंकन कली बीसी ये सी बिंदु 75 डिग्री कोण अंकन करी देख 75 डिग्री केमी हम 60 आगे करवा 60 90 60 डिग्री तापर 90 डिग्री करवा 90 डिग्री कर सारा पर जोग करदे यहाँ को तापर मझे जो 60 और 90 मझे जो 30 डिग्री अच्छी ताकू समद्विखंड करदे आम 75 डिग्री कोण पाइबा। तेणु ये जोटा पाइली यहाँ हूँ 75 डिग्री मुझे टे पछपट को बढ़ेदेवी बढ़े सारापर ये जो अंतरटा दे 1.4 मु अंतर 1.4 मु काटी 1.4 देख 1.4 नेली नहीं कि सी रु डी से डी बिंदु मु काटिदेली 1.4 वर्तमान डी आउ बी को जोग करी डी आउ बी को जोग करदेली बीडी रेखाखंड पाइली बीडी रेखाखंडर मु समद्विखंड का लंब अंकन करी देख ताको समद्विखंड करी वर्तमान यहाँ समद्विखंड कले समद्विखंड कली वर्तमान ताहा ये जो बिंदु छेद कला से ए बिंदु वर्तमान ए बी जोग करदेवी वर्तमान त्रिभुजटी मुझे पाईगली ए बी सी त्रिभुज पाईगली केमती कली आउ थे कहीदे प्रथमे बीसी नहीं जी 6.1 ये बीसी 6.1 नहीं गली तापर सी बिंदु रे मु 75 डिग्री कोण अंकन करी 75 डिग्री केमती कोण अंकन करवा ना आगे 90 डिग्री कोण 60 90 60 आ 90 मझीटा जोटा सेटा हूँ 75 कोण अंकन करी मु तल आड़ टे बढ़े देवी तांकर जो बी सी माइनस बी जोटा देती से 1.4 1.4 नहीं गली नहीं सारापर बीडी को जोग करदेली से बीडी ए बी डी ये जो समद्विबाहु त्रिभुजर भूमि मु से भूमिर समद्विखंड का लंब नहीं गली ताहा जो छेद करुच्ची सीडी को सीडी वर्धित अंश को सेटा ए बिंदु तेणु अतएव ए बी सी एक आवश्यक त्रिभुज अतएव ए बी सी एक आवश्यक त्रिभुज स्मॉल सी एटी एबी एबीर दैर्घ्य आम मापिबा मनकर यहाँ है आमर 7 सेंटीमीटर एबी देख 7 सेंटीमीटर है तेणु मुझे लिखिली एबी 7 सेंटीमीटर आउ बी माने यहाँ हूँ स्मॉल बी माने एससी एससी क्यों मापिबा एसी हूँ देख केते आसुची ये मुझे एसी रखिली एसी आसला केते ना 5.5 देख 5.5 नहीं 5.6 आसुची तेणु मापिकी लिख तेणु तुम से जो प्रश्न देइथिबो से अनुसार अंकन कर सारा पर से माप करने को कही तेणु माप करके तार दैर्घ्यटा लिख यहाँ गला पिला माने 1 नंबर थर्ड बिट यार परवर्ती प्रश्न आम करवा देख परवर्ती प्रश्न अच्छी ये देख 5th बिट
देइछि त्रिभुज एबीसी अंकन कर जार स्मॉल ए 7 सेंटीमीटर बी कोण 60 डिग्री एवं सी माइनस बी 1 सेंटीमीटर लिखि सारा पर ए और सी दैर्घ्य माप कर लेख। ठीक से हीपरी ये प्रश्नटी ये देख आम केमती करवा ये कौन है ना सी माइनस बी सी अर्थ ए बी आउ स्मॉल बी अर्थ एसी ये ए बी एसी ठार बड़ पे देख ये रफ चित्रटा टे देख बर्तमान ए बी सी त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ये ए बीटा बड़ एसीटा सान तेणु केते बड़ तार डिफरेन्स हूँ 1 सेंटीमीटर ये गोटे डी बिंदु मुझे देली ये बीडीटा हूँ 1 सेंटीमीटर जदि 1 सेंटीमीटर हुए तबे एडी आउ एसी ये दुटा सामान हम समद्विबाहु त्रिभुज हो सीडी हम से त्रिभुजर भूमि तेणु से भूमि को समद्विखंड कले आम ए बिंदु पाइबा आठी बी कोण देइछि 60 डिग्री तेणु आम किपरि करबा देख प्रथमे आम स्मॉल ए जोटा बीसी आम नहीं जा 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर नहीं जा 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर नहीं सारा पर या ना देदेवा या ना हूँ बी आउ सी बी कोण मु 60 डिग्री कोण अंकन करी बीटा हूँ 60 डिग्री कोण अति सहज 60 डिग्री कोण अंकन कली अंकन कर सारा पर देख ता बिंदु को बिंदु मिसईकी ताकू जोग करिवो जे बी बिंदु मु एटा को नहीं गली बी 60 डिग्री कोण 60 डिग्री कोण नहीं सारा पर आम बीडी नहीं जा 1 सेंटीमीटर ये बीडी 1 सेंटीमीटर नहीं जा 1 सेंटीमीटर ये बहुत छोट टे देखिके एटा करिवो बीडी ये 1 सेंटीमीटर मु डी आउ सी को जोग करी डी आउ सी वर्तमान सीडी पाईगली सीडी पाईगला परे से सीडी रो मु लंब समद्विखंडक बाहर करी को समद्विखंड करी देख तापरे एठी सी बिंदु रखिकी चाप काटिबी वर्तमान ये जो लंब समद्विखंडटा यहाँ टे करके बढ़े दवा वर्तमान ये जो डिब्बी टी सान हो गला मु डिब्बी के आउटे बढ़े देवी ये बढ़े देली वर्तमान जो बिंदु पाइली सेटा हूँ ए बिंदु पाइली वर्तमान ए आउ सी को जोग करी ये बर्तमान देख त्रिभुज ए बी सी आम पाईगले तेणु केमती कले मुझे थे कहीदे कौन करवा प्रथमे बी सी नवा 7 सेंटीमीटर देती बी सी 7 सेंटीमीटर नहीं जा नहीं सारा पर बी कोण आम 60 डिग्री अंकन करवा बी कोण 60 डिग्री अंकन कर बढ़ेदवा 60 डिग्री बढ़ेदवा तार बी डी जो अच्छी बी डी यहाँ हूँ 1 सेंटीमीटर सी माइनस बी जोड़ा देती आम 1 सेंटीमीटर काटिदवा काटिकी डी को सी सहित जोग करवा तापर ये जो सी डी रहा तार लंब समद्विखंडक आम बाहर करवा अंकन करवा समद्विखंडक रेखा बाहर करवा अंकन करवा ताहा डी ये जो बी डी को जो वर्धित अंश को ताको जो बिंदु छेद करवा ता ना दबा ए तापर ए सी को जोग करदवा पुणी आउ टिके अच्छी तार बी स्मॉल बी और सी रो दैर्घ्य माप कर लेख स्मॉल बी माने एसी देख एसी की मापिबा ये हूँ मापिकी लिख से प्रश्न दे तुम मापिकी लिख मोर 9.4 मुझे लिखी बी स्मॉल बी जोटा कि एसी सेटा 9.4 सेंटीमीटर तापर कही स्मॉल सी जो स्मॉल सी जोटा कि ए बी
সেটা কেতে হব মাপিকি দেখ এটি মাপিলি 10.2 আচ্ছা পিলাମାନେ দেখ এই যে মু করুছি এইটা টিকে একুরেট আসব না কাহিঁকি এটা হচ্ছে স্কেচ পেন টিকে মোটা ଅଛି তেণু ইয়ার বিন্দু গুড়াক পুরা সার্প আসব না তেণু তুমি নিজের করব যেটা করব সেই অনুসারে করব দেখব এবি রু এসি যে ডিফরেন্স আসব সেটা তোমার 1 সেন্টিমিটার আসবা দরকার এটা 9.4 এটা মানে 10.4 আসবা কথা এই যে পয়েন্ট টিকে আসছে এটা যে মোটা টিকে ଅଛି সেইপাই জনা পড়ুଛି তেণু তুমি নিজে তাকে সার্প করিকি করব পেন্সিল সাহায্যে আচ্ছা তারপরে দেখ নেক্সট क्वेश्चन আমি করিবা পরবর্তী প্রশ্ন 2 নম্বর প্রশ্ন এক সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন কর যাହାର এক বাহুর দৈর্ঘ্য আউ উচ্চতার অন্তর 1 সেন্টিমিটার দেখ আমি সেটা করিবা যে সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করিবা যে সে অঙ্কন করিবা যেটা এটা সমবাহু ত্রিভুজর তার বাহুর দৈর্ঘ্য আউ উচ্চতা হচ্ছে বাহুকে সমদ্বিখণ্ড করে যে ভূমিকে সমদ্বিখণ্ড করে ଆଉ ସେ ବାହୁ ଆଉ ଉଚ୍ଚତାର ଅନ୍ତର ଦେଇଛି 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଗେ ରଫ୍ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠି ମୁଁ ABC ତ୍ରିଭୁଜ ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରିଛି ABC ତ୍ରିଭୁଜ এটা ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ यार उच्चता ଆଉ ହେଉଛି ବାହୁ AB ଆଉ AD এই ଯେଉଁ ଏଙ୍କର ଅନ୍ତର ହେଉଛି କେତେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତେଣୁ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର हेले आमे त्रिभुज अंकन करिया केमती प्रथमे कौन करिया देख ना आमे गोटे लंब अंकन करिया लंब 90 डिग्री अंकन करिया अंकन कर सारा परे सेटा टिके बढ़ेबा तळकू जोटा कि बाहु ठारू 1 सेंटीमीटर अधिक तेणु आमे तार ना दबा मनकर DE से जो 1 सेंटीमीटर अधिक है सेठू आमे केते डिग्री काटिबा सेटा होची बड़ कथा देख यार होची 60 डिग्री शीर्ष कोण जो लंब टाणी सारा पर जो DAB कोण एटा 30 डिग्री आउ ये जो बढ़ेला पर AE आउ AB एटा गोटे समद्विबाहु त्रिभुज AB इजिकल टू AE हम तार शीर्ष कोण 30 डिग्री जाइए माने भूमि संलग्न कोण केते हम ना 30 डिग्री कटिगले 180 रु आ रहा 150 अधा हम जी से 75 डिग्री सेटा हूँ आमर ई बिंदु आम अंकन करवा केमती देख मु अंकन करुच्ची प्रथमे मु कौन करी जेकोसी गोटे रेखाखंड नहीं जी नहीं जाकि तापर जेकोसी बिंदु रे मु कौन करी 90 डिग्री अंकन करी प्रथमे 90 डिग्री अंकन करी अंकन कर सारा पर देख 90 डिग्री अंकन कर सारा पर ताकू टिके तल को बढ़े देवी ये जो बढ़ेबी से केते सेंटीमीटर बढ़ेबी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर मुझे दौची 1 सेंटीमीटर मुझे बढ़ेली ये मु पाइली ई बिंदु से ई बिंदु रे मु 75 डिग्री कोण अंकन करी 75 डिग्री कोण अंकन केमती हम टिके देख प्रथम ये देख 90 डिग्री मु अंकन कली 90 डिग्री अंकन कर सारा पर तापर देख मु केमती 75 डिग्री कोण अंकन करुच्ची टिके देख ठीक भाव आम रहा दरकार मुझे टे बढ़े दूसरी आगे तौक 75 डिग्री यहाँ हम 75 डिग्री यहाँ हूँ 60 तापर मु करी 90 60 यहाँ हूँ 90 हो गला 90 60 आउ 90 मझे जो कोणटा सेटा को आम 60 आउ 90 मझे जो अच्छी 30 डिग्री टाक समद्विखंड करदे
ए जोटा पाइली सेटा होची 75 डिग्री। पाइगली एटा को बिंदु पाइगली बी बिंदु। बर्तमान बी बिंदु पाइगली। बी बिंदु पाइला परे तापर आउ किछ असुविधा नहीं हमको। देख एठी ए जो बी ई टा को समद्विखंडक तार टाणी देबी। बी ई रो समद्विखंडक लंब बी ई रो समद्विखंडक लंब जो टाणी दे से जोटी छेद करिवो सेटा होची शीर्ष बिंदु। बी ई रो लंब एटा होची ए बिंदु शीर्ष बिंदु पाइगली। ए बी को जोग कर देबी। बर्तमान ए बी जतिक अच्छी मु सेतिकी नहीं जीवी एसी नहीं जीवी सेठू। ए बी जतिक अच्छी सेतिकी एसी नहीं जीवी। बर्तमान जोग कर देबी। बर्तमान ए बी सी आमर हो गला एक आवश्यक समबाहु त्रिभुज। ए बी सी एक आवश्यक समबाहु त्रिभुज। किपरि अंकन कली आउ थरे कहि दउची। देख पिला माने प्रथमे मु कौन करी ना जेकोसी गोटे रेखाखंड नेली तापर कौन से एक बिंदु रे मु 90 डिग्री अंकन कली। अंकन करी तलू टिके बढ़े देली। सेठू से बढ़ी सारा पर सेठू 1 सेंटीमीटर काटिदेवी। 1 सेंटीमीटर काट सारा पर सेठू जो ई बिंदु पाइली से 75 डिग्री कोण अंकन करी। 75 डिग्री कहीं मुझे बुझी सारी 75 डिग्री कोण अंकन कला सी रेखाखंड को जो छेद कर बी बिंदु देली। तापर ये जो बी ई जो तार भूमि से ए बी त्रिभुज भूमि ताकू लंब समद्विखंड कली। ताहा ये जो डी लंब को जोठी छेद कर ए बिंदु मैं समबाहु त्रिभुज ए बी बाहु पाइगली। तापर ए बी बाहु जिते सेठू सेतिकी दैर्घ्य नहीं कि मु एसी अंकन कली। सी बिंदु देली। बी डी बाहु को वर्धित करा जायछि। सी बिंदु देली। तापर एसी को जोग कली। आउ बी डी तो बी सी तो अच्छी आउ तेणु आम पाइगले ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज। आज समय शेष होती तेणु आज एतक धन्यवाद।